having a fair chance now qualifying for the Super 8. Yeah, that is there, but you should try to go for first and second place. That is very important. No, the golden rule anywhere is who remembers the person who came second. Everyone remembers the person who came first. So I agree. But at the same time, Ajay, sometimes, I feel sorry for a team like South Africa who are always good starters and then later stage, the law of averages bring them down. If you look at the South Africa of 1990s and 2000, they will always qualify till quarterfinal, and then when it starts, the knockout stage, that's where the law of averages will take them out of the show. And people call them chokers. So this match is just about to begin. Openers are out in the center to open the innings for Challenge Sports. Bilal Sheikh with captain Sachin Boyer. Bilal is going to take the strike for the first ball, and it is going to be Ajay Kadam in the first over. And this is quite interesting. Ajay Kadam is opening the bowling. Yesterday he bowled in death overs, but they have changed the strategy. Captain is having different plans today. RK Free Hit and MJ Sports. 5 fielders on the offside. They all are in the ring. 4 on the onside. Here is the first ball. Good delivery, nicely played as well. Just opens the face of the blade, and that's poor fielding there at the backward point. Bilal gets 2. Ajay, one more thing that you must have noticed that they played the first game and they got a bit of respite. So their legs are fresh, and the moment they saw there was an opportunity to be seized, they have gone ahead and taken the runs. They very well know that in the last match, in the first innings, last over, they managed only 3. So they now realize that it is the vitamin R which will keep them going. Yesterday morning we didn't have big scoring games, but in the afternoon session we had a couple of high scoring games. Lovely delivery that was coming back to the right hander. Bilal picks up a single. Score moves up to 3 runs without loss. So Ajay Kadam, I think given an opportunity to start with the new ball, definitely there is a plan up their sleeve, and you cannot go ahead and continue with the same game plan because your opposition varies, their strength and weaknesses and opportunities vary, conditions vary, and the situation, that is the point table and the net run rate, also varies. So probably that should be one of the reasons why they want to go ahead with Ajay Kadam in the first go. Now Sachin facing the next delivery from Ajay Kadam. Another good delivery following the batsman there. Batsman was trying to make room. Now, certainly that was a great shot. That could have gone to the fence if not stopped by the bowler on the follow-through. So, Ajay has done a reasonably good job, given away just 3 runs in 3 deliveries. Sachin Boyer is yet to open his account, and Bilal playing on 3 of 2. And Challenge Sports, 3 without loss. Ajay Kadam looks in very good rhythm right from the word go. He hasn't allowed the batsman to free the arms. This time Sachin takes the aerial route. That's a fine stroke. It's gone up and over wideish long on for a 6. What a gigantic hit. Sachin started in style in the previous match as well. He just waited for his moment, and when there was a delivery available to be hit, oh, what a shot that was. Although he touched the toe end of the bat, but the timing and the power was so good that it went right up to the pavilion. It's got very strong forearms, and that was a clean strike. First maximum of the match. Score moves up to 9 runs without loss. Wasn't a bad delivery at all, but a very good shot by the captain of Challenge Sports. 2 fieldsmen outside the 30-yard circle, both on the on. This time he makes room and smashed it. Poor work at cover, and it runs away for 4. Oh, that just went like a tracer bullet. What a superb hand-eye coordination. It's never easy to step forward and play those kind of shots.
but the previous sixer had given him that confidence to step forward and go ahead and dispatch that ball to the fence for 4 runs. Look at that. That should have been stopped by the fielder. Slightly awkward bounce for the cover fielder, and that's where he made the mistake. And Ajay, there was no signs of uneven bounce as well. Practice makes man perfect, and fielding is like mathematics. The more you practice, the more you become perfect. Nandan Patil, the guilty man at cover. Fielding has been pretty ordinary. Even on the first ball of the match, we saw a slight fumble at backward point. So they need to be careful. Now there is change in the field. Extra cover fielder has gone back, and the deep square leg has come in. Lots of movement in the field. 13 runs without any loss. Current run rate 15.61. 5 balls 13. This is very good start by Sachin Boir. This time slightly down the legs, and it's a wide. So now bowler is also feeling the pressure. Yes, definitely. I mean, 2 good shots. And you know, whenever a fielder drops a catch or doesn't stop the runs, that is where the bowler may get a bit demotivated as well. He started pretty well, Ajay Kadam. Big inside edge of the bat, and back to the bowler. There will be no run on that delivery. That marks end of the first over. 14 without loss. Challenge Sports. Super start. They couldn't have asked for a better deal than this. Sachin Boir going great guns. As a skipper, Bilal Sheikh, Mr. Dependable of this team, is playing on 3. Ajay, one more topic I would love to open for discussion is the last match where Shahid Khan told me during the toss that he would want to give opportunity to all his players to play in this tournament. I think that's a very sportsman spirited decision, because you don't just buy players for the heck of buying it. If you are not able to give them the chance to play even one game, then I think there is a bit of injustice to the players. So do you still feel that Shahid Khan's statement of giving opportunity to each and every player to play minimum one game is a good idea? Yeah, absolutely. That is not a bad idea at all. Shahid Khan is one of those players who understands his players pretty well. So he's trying to give a chance to every player of his squad. Lots of teams are doing this in this BPL season 2. Bilal Sheikh on strike. And it is going to be now Saif Sheikh, who bowled 2 consecutive maiden overs yesterday and created the big record in BPL. But he was expensive in the next match. Nicely played. Waited for the ball to turn and smacked it through the covers for 4. Turn and bounce, but what I loved is the footwork. You should have a footwork of a ballet dancer, and that's what was to be seen. And Bilal was into the shot in a jiffy and dispatched that to the fence for a beautiful 4. Look at that. He made a little bit room as well. Gone on the top of the bounce and found the gap beautifully between cover and extra cover. First boundary in this match for Bilal Sheikh. Challenge Sports off to a flying start. 18 runs without loss. We are just in the second over. And again, this time over the top of extra cover. Another beautiful stroke by Bilal Sheikh. 4 more. Bilal on song now. One good thing that I have observed about all the good batters throughout India is if you have a good ball sense, which ball to play and which not to play, and what kind of shot to be played for each category of the delivery, that's where you find Bilal a cut above the rest, and he has continued the purple patch that he is in since yesterday. Scored 34 valuable runs in first match, then 22 in the morning match today. So he's in good form, Bilal Sheikh. Another lovely stroke of the back foot. Third consecutive boundary. He is dominating the match, Bilal. I think that's the way you should take the opposition to the cleaners, and the way he is playing all shots in one direction
and with equal command. Look at that hand-eye coordination, making a room for himself, and there she goes for 4 valuable runs. So that's Bilal for you, Mr. Dependable for Challenge Sports, and delivering it time and again since yesterday. 3 quality strokes from quality batsman Bilal Sheikh. The first one through the covers and then over the top of extra cover, and again great backward punch through the covers. Is waiting for the ball to come, is not going towards the ball. Saif Sheikh is under tremendous pressure. Challenge Sports now 26 without loss. Ajay, he is able to generate the turn and the bounce, and the bounce that he is giving is sufficient enough for Bilal to go ahead and place his shots. So the trajectory is something where I think he is goofing up, and he will have to make a strong comeback. Yes, bowler needs to do something different now. Once again, a fine stroke over extra cover, another 4. Oh, that is rubber stamp, B-I-L-A-L. A brilliant Bilal, the better Bilal, the best Bilal. Look at that shot. I mean, this certainly requires the domination, the confidence, and the practice. And I think he is named as a king of Bhiwandi cricket, and that's what is to be seen. Lovely 4 boundaries. 4-4-4-4. I'm sure Nandan Patil would also love that, because he's also known as King of Ring. And this is a perfect start. Next ball. This time he moves towards the offside and smacked it over the backward square leg. That is a massive hit, 6 runs. So Bilal is playing all kind of shots. He has clobbered them, he has smothered them, hammered them, smacked them, smashed them. It's Bilal, Bilal, Bilal. In front of the square Bilal, back of square Bilal. It's all a Bilal show. And Bilal Sheikh moves up to 25 in no time, in just 7 balls. Sachin Bhoir is also in good touch. He's on 10 of 4 deliveries. Look at that, shuffling long way across and hitting it over backward square leg fence. Saif Sheikh would love to forget this over as early as possible, but at the same time, after the match, you should go ahead and watch the video of this over to learn and improve. Last ball of the over, he goes over mid on this time. That's gone high in the air. Fielder is trying for the catch, but no chance for him. 1 bounce and over the fence for another 4. This is a complete domination of Bilal Sheikh. In Hindi, I would like to say Bilal Sheikh, जिसका खेल पूरा भिवंडी रहा है देख, Bilal Sheikh. It's raining in force here at the very historical Parshuram Tavre Stadium in Bhiwandi. 26 runs came of the over, and after 2, it's 40 without loss. Challenge Sports. So at 40 you get naughty, and what a right treatment given to every delivery. And this is the highlight that you are able to see. You would love to watch it again and again and again. और सबसे अच्छी बात उनका फुटवर्क रहा है. ये देखिए, ये गेंद थोड़ी आगे रखी थी, लेकिन उसको भी इनसाइड आउट ड्राइव किया था उन्होंने. बिल्कुल हाफ वॉली में लेकर रूम बनाकर ज़्यादातर स्ट्रोक्स खेले, और उसके बाद फील्ड में परिवर्तन हुआ. डीप कवर में खिलाड़ी रखा गया, फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला उन्होंने. और ये अंतिम गेंद जो मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट किया था. 5 चौके और 1 छक्का, 26 रन कुल मिलाकर खर्च किए अपने ओवर में सैफ ने. कल हीरो थे, आज देखिए क्या हालत हुई है. यही क्रिकेट है, लेकिन इससे मायूस नहीं होना है. देखिए अजय, एक चीज़ आप भी गौर करेंगे कि कोई बैटर अगर लगातार 2-3 पारियों में 0 पर आउट होता है, या कोई एक गेंदबाज एक ओवर में 20-26 रन दे देता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो खिलाड़ी बुरा है. एक सिचुएशन या एक दिन कभी कभी ऐसा होता है जब आप नहीं कर सकते. एक अच्छा कैप्टन वही होता है. अगर मैं मान लीजिए सैफ का कैप्टन हूँ, मैं उसको एक और ओवर देना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो टीम का कल जिसने 2 मेडन ओवर डाले हैं, ये एक खराब ओवर से गेंदबाज बुरा नहीं हो जाता मेरी नज़र में. और जिन गेंदों से उनको सफलताएं कल मिली थी, कहीं ना कहीं वही गेंदें शुरुआत में उन्होंने डाली, लेकिन बिलाल कहीं ना कहीं उनसे 2 कदम आगे रहे, जिस वजह से अच्छे शॉट्स उन्होंने खेले. फुटवर्क लाजवाब बिलाल का. 2 ओवर के बाद 40 रन बिना किसी नुकसान के. अजय कदम आक्रमण जारी रखते हुए, ओहो, लंबा हिट आउट ऑफ स्टेडियम. 6 रन. कड़क.
बिल्कुल कड़क है और सड़क पे कड़क जिया गया धड़क धड़क धड़क। क्या सिक्स लगाया वहां पर। कृष्णा सातपुते भी बतौर विकेट कीपर उस शॉट को देख रहे होंगे। और ग्राफिक्स भी देखिए, प्रिंस मूवीज पूरी तरह से तैयार, कड़क। और अजय, अगर आपको याद हो, शायद एक टूर्नामेंट में जब हम साथ में कमेंट्री कर रहे थे, एक चाय का गिफ्ट हैम्पर था जिस पर लिखा था कड़कपन जरूरी है। नाना पाटेकर की फोटो थी, वो मुझे याद आ गया। कड़कपन जरूरी है। चैलेंज स्पोर्ट्स पिछले मुकाबले में जो रन नहीं बने थे, रनों की भूख अब चैलेंज में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दोनों जो स्टार्टिंग के बैट्समैन हैं, ये दोनों अब इस तरह बैटिंग कर रहे हैं मानो बहुत आसान कर दिया है रन बनाना। 29 पर बिलाल 8 गेंदों का सामना किया है, 16 पर सचिन भोईर 5 गेंदों का मात्र सामना किया है। और इसे बढ़िया शुरुआत और क्या दे सकते थे ये दोनों भी सलामी बल्लेबाज, दोनों भी अविजित है। एक बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत है चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए और लगता है कि शायद 3 फिगर मार्क देखने को मिल सकता है हमें। और ये चाहिए अजय, मैं समझता हूँ 5 मैच में एक मैच बड़े फर्क से जीतना जरूरी है ताकि नेट रन रेट में भी आपकी चुनौती बनी रहे। हालांकि नेट रन रेट का कोई इशू नहीं है इस टूर्नामेंट में। अपील हो रही है लेकिन उत्साह ज़्यादा था अपील में बॉलर का। विकेट कीपर को भी पता था कि बल्ला लगा नहीं है। हालांकि अच्छी गेंद थी, स्टंप्स के ऊपर से निकल गई। 14 गेंदों में 46 रनों की भागीदारी, रनों की लूट मार और रन बह रहे हैं अब चैलेंज स्पोर्ट्स द्वारा। और सबसे बड़ी बात है, निर्दोष बल्लेबाजी है। जहां अभी तक मौके मिले नहीं है फील्डर्स को कैच करने के। इस बार खींचा है ऑन साइड में, बिल्कुल गैप में। एक और शानदार स्ट्रोक कप्तान के बल्ले से। और सचिन भोईर यहां पर आलीशान शॉट खेलते हुए, इंपेरियस जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और अजय, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि सचिन भोईर क्योंकि चैलेंज ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, होम ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, व्हेन यू प्रैक्टिस एक्चुअली ऑन अ ग्राउंड दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी और द कटिंग एज व्हेन यू प्ले इन द ग्राउंड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। अच्छा, हाँ बिल्कुल, और उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। ख़ास तौर पर वहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट्स है, चैलेंज ग्राउंड पर ज़्यादा टूर्नामेंट्स भी खेलती है। कहीं ना कहीं साल भर में हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे टूर्नामेंट्स होते हैं और ये स्ट्रोक ज़्यादा खेला जाता है, स्लॉग स्विप। वहाँ पर स्क्वायर बाउंड्री छोटी है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उनके बल्लेबाजों को होता है। और ये प्रिय स्ट्रोक है सचिन का। शानदार पार्टनरशिप, 50 का आंकड़ा पूरा हो चुका है। 52 रन, 29 बिलाल का कंट्रीब्यूशन है। और सचिन भी कप्तानी पारी खेलने के इरादे से आए हैं, 22 पर पहुंच चुके हैं। अभी तक 3 छक्के लगाए हैं सचिन ने, 1 चौका, यानी कि उनके सारे रन्स बाउंड्रीज में आए हैं। बिलाल ने 1 डबल लिया है, 1 सिंगल लिया है और बाकी के सारे रन्स उनके भी चौकों छक्कों में आए हैं। लो फुल टॉस, इस बार सेंसिबल बैटिंग, ड्राइव किया हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की जानिब, 1 रन लेते हुए सचिन भोईर। 53 रन और ये रन बढ़ते ही जाएंगे अगर ये दोनों नाबाद रहे। एक अच्छा लॉन्च पैड तैयार किया है यहाँ पर। गेंदबाजी को मेरिट पर खेला गया है और बिलाल ने मैच को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। ओ, क्या ये कैच था? रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे हैं और बहुत बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बहुत बेहतरीन ओपनिंग कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है जिस तरह से दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं। ये ज़रूर मौका था वहाँ पर, लेकिन मुश्किल अवसर। ब्लाइंडर था और फॉलो थ्रू में उसको रोकना उतना ही मुश्किल रहा। विकेट की तलाश में है इस समय गेंदबाज। पुल किया है, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद और एक आसान सा कैच काउ कॉर्नर रीजन में। बिलाल शेख की पारी का अंत होता हुआ, पहला झटका लगता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स को। नहीं, वाकई में ये विकेट का आना बहुत ज़रूरी था आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के लिए। बिलाल बहुत ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार वो पुल करने की जो उनकी चाहत थी, एक आसान कैच सैफ शेख को दिया और सैफ ने उस कैच को लेकर एक 26 रन वाला जो ओवर था उसके मलाल को कम किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही, सैफ पेयर ऑफ हैंड्स
आसान सा कैच था, कोई गलती नहीं की उन्होंने। बिलाल ने अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम को, 31 रन बनाने के बाद आउट हुए, मात्र 10 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट उनका 310 का रहा, 5 चौके लगाए उन्होंने और 1 छक्का। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। बैकड्रॉप में A1 चिकन सेंटर का बैनर आप देख रहे हैं। चिकन लाहौरी, चिकन हंडी, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, चिकन अफ़गानी। चिकन अगर खाना है तो A1 चिकन। हम आभारी है फुल टॉस बॉल अली असगर भाई, जो फुल टॉस की गेंदें कमाल कर रही है। 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद साहब, जिन्होंने हमें टी शर्ट्स मुहैया करवाए, उनका भी विशेष आभार। एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन, इनका विशेष आभार। मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफीज़। O2 लाइव शाहिद पापा, साफ़ सुथरा पानी। धनेश स्पोर्ट्स कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल। लापाज बुटीक अनीस अंसारी और वसीम अंसारी, रियल एस्टेट और रियल स्टील, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए लापास बुटीक का शर्ट स्पॉन्सर किया है। द ड्रीम होम केक, इनके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मुंबई तड़का की चाय, जो हम लोगों को तरोताज़ा रख रही है, उसके लिए शुमाइल सूसे SK एंटरप्राइजेस, इनका विशेष आभार। और फरहान पटेल साहब, जिन्होंने ऑल इंडिया 18 आइकॉन प्लेयर्स के लिए 18 अवार्ड्स यानी कि 18 गिफ्ट ये देने का फैसला किया है। ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इस वक्त RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स के ओनर फुरकान बुबेरे साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। अजय कदम 2 ओवर 29 रन 1 विकेट। करेश मात्रे अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए, और देखना होगा नया ओवर लेकर आ रहे गयासुद्दीन शेख। अजय, आपको नहीं लगता पहला या दूसरा ओवर जब खर्चीला रहा तो ग्यासू का आना लाजमी था? जी हाँ बिल्कुल, और कल उन्होंने नई गेंद का इस्तेमाल किया था। गेंदबाजी उतनी भी बुरी नहीं रही है उनकी इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज जो रणनीति थोड़ी बदली गई, अजय कदम को नई गेंद सौंपी गई, वो रणनीति कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा सफल साबित हुई नहीं है। 2 ओवर में 29 रन उन्होंने खर्च किए हैं, लेकिन सैफ का ओवर ख़ासतौर पर काफ़ी ज़्यादा महंगा रहा। तो अभी देखते हैं कि गयासुद्दीन बतौर फर्स्ट चेंज आए हैं बॉलिंग में, क्या होता है। प्लान रखना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस, अगर बोरीवली से मुझे भिवंडी आना है तो मेरे पास ऑप्शन है, वाया साई बाबा हूँ या फिर वाया कामण हूँ, आना ज़रूरी है। तो आई थिंक दैट मेक्स द डिफरेंस। 3 ओवर 55 रन 1 विकेट। सचिन भोईर 8 गेंदों में 23 पर। नया ओवर करेंगे गयासुद्दीन शेख। हाजी समद सेठ स्टैंड एंड से ओवर पिच बॉल थी और बहुत ही सीधी लकीर खींचते हुए सचिन भोईर, क्या शानदार शॉट खेला है सचिन ने। कप्तान की बारी। ज़बरदस्त स्ट्रोक, ये टाइमिंग देखते ही बनती है सचिन भोईर की। और देखिए, कभी भी वो स्ट्रोक खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश उनके बल्ले का नहीं होता है, चाहे फिर सामने खेले या फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेना पसंद करते हैं। और बल्ले के बीचों बीच जब लगती है तो बहुत दूर भी जाती है गेंद। बॉलर की सिर के ऊपर से ये शानदार चौका पहले बाउंस पर। बहुत अच्छे मिजाज में चलते हुए कैप्टन सचिन भोईर, एक से बढ़कर एक दिलकश आलीशान शॉट्स आज उन्होंने दोनों मैचेस में दिखाए। ग्यासू की है लोअर फुल टॉस, इस बार ड्राइव कर दिया है और वहां पर अंपायर शकील कोटी 4 रनों का इशारा देते हुए 2 बेहतरीन चौके। अजय, आमतौर पर फुल टॉस की गेंदों पर 6 के लिए जानी जाती है, लेकिन इस टूर्नामेंट में 166 चौके लगे हैं। ये भी इस बात का द्योतक है कि फुल टॉस की गेंदें 6 और 4 दोनों के लिए जो है मुफीद है। जी हाँ, कल के मैच में एक हमने देखा था द लायंस ऑफ देवा की ओर से थॉमस डायस ने काफ़ी सारे चौके लगाए थे। 6 चौके मेरे ख्याल से उनके बल्ले से निकले थे, और आज इस मैच में भी काफ़ी सारे चौके देखने को मिल रहे हैं। इस बार मिस टाइम रहा है और आसान कैच नंदन पाटिल के हाथों में, और आउट होकर वापस लौटते हुए यहाँ पर सचिन भोईर। लेकिन आउट होने से पहले एक बेहतरीन और बेशकीमती पारी अपनी टीम के लिए उन्होंने खेली है। 31 रन बनाए उन्होंने, 3 चौके 3 छक्के जड़े। और बिलाल और सचिन, ये दोनों ने अब स्टार्ट तो दे दिया है। अजय, यहाँ पर वही एक रिस्क अभी भी है कि पहले अच्छा काम किया और आखिरी ओवर में जो 3 रन आए। प्रतीक विषय अब नए बैटर हैं जो पिछली बार 0 पर आउट हुए थे। प्रतीक विषय अगर यहाँ पर 15-20 जोड़ देते हैं तो चैलेंज के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। और पिछला मुकाबला भी आपको याद होगा कि डेथ ओवर्स में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए थे, आखिर के 2 ओवर्स में खास तौर पर।
प्रभुदेवा बॉयज़ भादवर टीम के जो बल्लेबाज थे वो ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए थे। और अब देखिए दो नए बल्लेबाज क्रीज पर है। जो दो बल्लेबाज सेट थे वो उनको आपने आउट कर दिया है। यहाँ से आपके पास मौका है कि आप वापसी कर सकते हो। 63 रन पहले ही स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। ये अच्छा मौका है कि दो नए बल्लेबाजों को दबाव में लाया जाए। दिन ने अपनी इन कटर गेंद पर विकेट प्राप्त किया है। आज के पहले मैच की आखिरी ओवर में 3 रन बने और 3 विकेटें गिरी है। उसके ऊपर से वही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गयासुद्दीन शेख इम्प्रोवाइज करते हुए खेलते हुए करेश मात्रे। अजय, आईपीएल, बीबीएल, पीएसएल, सीपीएल, इसने एक और काम किया है कि हमारे टेनिस क्रिकेटरों को भी उनके तरह शॉट्स खेलने के लिए प्रोत्साहित किया है। जी हाँ, खास तौर पर 2020 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय में आने से वहाँ से उसके बाद ये ज़्यादा देखने को मिलता है। टैप करते हुए प्रतीक विषय चाहते थे कि इस बार तो मैं 0 पर आउट नहीं होऊंगा। पहला रन बनाया और स्ट्राइक दिया करेश के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65, 2 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट 17.44। गयासुद्दीन की 5 गेंदों में 10 रन आए हैं। 2 चौके, 1 विकेट और 2 सिंगल। करेश मात्रे 1, प्रतीक विषय 1। पहले 3 ओवर्स की तुलना में ये ओवर ज़रूर थोड़ा अच्छा घट रहा है। करेश ने इस बार उठा दिया और एक आसान सा कैच यहां पर लपक लिया गया है। और गयासुद्दीन शेख, ओवर का आगाज भले अच्छा ना रहा हो, अंजाम अच्छा रहा। यश पाटिल ने उस कैच को मुकम्मल किया और करेश मात्रे, जिनसे रनों की उम्मीद की जा रही थी, वो आउट होकर वापस। और कप्तान अपनी टीम को अब मोमेंटम दिलाते हुए 2 विकेट्स चटका लिए उन्होंने एक ही ओवर में। ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया था, सामने रखा था, लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला ऑन साइड में। लॉन्ग ऑन को बीट करना चाहते थे, खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर खेला था, लेकिन एंटीसिपेशन बहुत अच्छा था वहाँ पर यश पाटिल का। अपनी दाहिनी तरफ जाते हुए उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, गेंद के नीचे सेटल कर लिया और आसानी से गेंद को कैच कर लिया। बहुत अच्छा कैच। क्या चैलेंज एक बार वही ग्रूव में जा रही है। पहले शुरुआत अच्छी की और जब फिनिश करने का समय आया तब क्या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिप होती हुई नज़र आ रही है। 4 ओवर 65 रन, 3 विकेट। प्रतीक विषय और प्रशांत पाटिल ये 2 नए बैटर्स हैं। गयासुद्दीन, यस, 10 रन भले खर्च किए, लेकिन 10 रन देकर अगर 2 विकेटें मिलती है तो ये अच्छी बात है। देखिए, गयासुद्दीन एक ऐसा गेंदबाज है जिसको विकेट दिए बगैर उससे रन लेना, ये मतलब किसी पठान से बिना ब्याज के कर्ज लेने वाली बात थी। गयासुद्दीन रन देगा लेकिन सामने विकेट भी लेगा। और पहली 2 गेंदें थोड़ी सी ढीली रही थी। पहली गेंद मैं समझता हूँ यॉर्कर डालने का प्रयास किया था, ओवर पिच हुई थी, वो स्ट्रोक भी बहुत उम्दा था, बॉलर के सिर के ऊपर से ड्राइव किया था सचिन ने। उसके बाद एक कमज़ोर गेंद जरूर रही, फुल टॉस, उस पर स्क्वायर ऑफ द विकेट चौका जा रहा था ऑफ साइड में, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करके दिखाई है गयासुद्दीन शेख ने। 4 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 65 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 65 for 3, जबकि पिछले मुकाबले में अजय 6 ओवर में वो 66 बना पाए थे। तो ये एक बदलाव है। जब आप हारते हैं तो उसको हार मत समझिए, उसको सीखने का मौका समझिए। और अमिताभ ने इसीलिए केबीसी में कहा है, सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखोगे तो जीतोगे। और ये तीसरा मैच है, दोनों भी टीमों का तीसरा मैच है। चैलेंज स्पोर्ट्स की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में उतने रन्स नहीं आ रहे हैं। टॉप ऑर्डर उनका ज़रूर अच्छा काम कर रहा है, खासतौर पर बिलाल शेख तो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। इस मैच में भी 31 रन बनाए उन्होंने। सचिन भोईर ने भी 31 रनों की पारी खेली, लेकिन अब जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर है। कृष्णा सातपुते ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर के रूप में इस मुकाबले में खेल रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी। और ये देखिए, हमारे कैमरामैन ने जूते के ब्रांड तक को पिकअप किया है। नाउ दिस इज़ व्हाट आई कॉल हाई क्लास लाइव टेलीकास्ट। प्रिंस मूवीज़, ब्रॉडकास्टिंग का प्रिंस। सैफ शेख के छोर को बदला गया है और यहाँ पर अपील। अजय, ये एक अच्छा तरीका भी है। सैफ ने सामने वाले छोर से अगर ज़्यादा रन दिए तो छोर को बदला जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और कैप्टन गयासुद्दीन ने सैफ में जो विश्वास दर्शाया है, सैफ ने अच्छी शुरुआत की है। इस बार वही धीमा लेग ब्रेक और बैकफुट पर जाकर 1 रन, और अब उसको 2 में तब्दील करते हुए। तो अगला जो मैच रहेगा आज, वो RD 440 और मैगी 11 के बीच। दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए अब हमारे टॉस बॉक्स में आना ज़रूरी।
उल्टा शॉट खेलने का प्रयास प्रशांत का। और देखिए फिर से भरोसा जताया गया पहले ओवर में खर्चीले साबित होने के बाद भी कप्तान द्वारा सैफ पर, जैसा कि आपने कहा भी था कि एक आध ओवर खराब जाता है, बॉलर खराब नहीं है। क्रीज के कोने से इस बार घुमाया गेंद को, क्या बात है। सैफ शेख, उनकी कलाइयों और उंगलियों का मैं परीक्षण करना चाहूंगा, क्या कलाइयों में कोई बॉल बेरिंग तो नहीं लगाया? जिस तरह से टर्न कर लेते हैं। 2 कदम आगे आए प्रशांत पाटिल ने, स्ट्रोक अच्छा खेला, आउट होने का खतरा हर वक्त रहेगा और यहां पर कैच लपक लिया गया। कृष्णा सातपुते के हाथ में आता हुआ कैच और पारी समाप्त होती हुई प्रशांत पाटिल की। अजय, दुख इस बात का है कि क्रिकेट 11 खिलाड़ी खेलते हैं, क्या टीम को जिताने की जवाबदारी या जिम्मेदारी केवल बिलाल और सचिन भोईर की है, बाकी के लोगों की नहीं है? ये सवाल खिलाड़ियों को अपने आत्म परीक्षण में अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना होगा। और देखिए बिलाल शेख से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है, किस तरह से उन्होंने डट कर सामना किया था पहले ओवर में सैफ के विरुद्ध, किस तरह से स्ट्रोक्स खेले थे, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीख मिल सकती थी। लेकिन आपने अक्रॉस द लाइन खेलने का शुरुआत में प्रयास किया, डॉट गेंदें खेली और उसके बाद एक बड़ा प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी आप सफल साबित नहीं हो पाए। निराश किया है प्रशांत ने। नए बैटर आए हैं, ड्राइव किया प्रतीक विषय ने, प्रतीक के साथ 1 रन। तो हमारे बीच दोस्तों इस वक्त मैगी 11 के टीम के ओनर मांगीलाल जी पालीवाल, आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। हमारे साथ एसके एंटरप्राइजेस के शुमाइल सूसे, इनका भी हार्दिक स्वागत है। एसके स्पोर्ट्स के शादाब कोटकर, आपका हार्दिक स्वागत है। फुरकान बुबेरे साहब, आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के ओनर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अविनाश पाटिल, स्कोर 67 फॉर 4। आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स के रजी कुंवारी, आपका भी स्वागत है। स्कोर इज 68, स्कोर रिकंसाइल किया है 68 फॉर 4। जहां अंतिम गेंद पर सिंगल लिया गया था। 5 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। 68 रन 4 विकेटों के नुकसान पर चैलेंज स्पोर्ट्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के विरुद्ध। सैफ ने 2 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट। अब देखिए ये सैफ है, पहले अगर वो यस बैंक का कैशियर था तो दूसरे ओवर में वो मारवाड़ी कंपनी का अकाउंटेंट है। उसने हिसाब बराबर कर दिया। उसने कैप्टन को कहा है कि मैं टीम में इसलिए हूं क्योंकि मैं सैफ हूं। जी हाँ, और फ्रंटलाइन बॉलर के तौर पर खेल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दारोमदार है उनके ऊपर। ज़रूर पहला ओवर थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने वापसी करके दिखाई और काफ़ी अच्छी वापसी इस मैच में हम देख रहे हैं आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स की। पिछले 2 ओवर डेफिनेटली आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के पक्ष में गए हैं और आखिरी ओवर अब विकी इनको दिया गया है। पहली गेंद स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन पूरा किया, 1 को 2 में तब्दील किया। प्रतीक विषय स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ऊंचे कद के खिलाड़ी है, इसलिए 22 यार्ड दौड़ते समय 1-2 यार्ड कम भागना पड़ता है और यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अजय, योर थॉट्स ऑन दिस डबल? इंटेंशन था उनका, वो इंटेंट नज़र आया, जिस तरह से स्ट्रोक खेलते हुए वो तेजी से भागे पहले रन के लिए और फील्डर पर थोड़ा सा दबाव बना, उसका फायदा मिला। इस बार भी स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरा नहीं लेना चाहेंगे। 71 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 71 फॉर 4। यह भागीदारी 3 बॉल में 4 रन की। करंट रन रेट 13.55। लेकिन अगर अंतिम ओवर में स्कोर को 80 तक पहुंचा लेते हैं तो रन रेट 16 का हो जाएगा, विच शुड बी अ गुड कमबैक। विकी का तिरछा रन अप, इस बार ड्राइव कर दिया है, बिल्कुल स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम की उस मिट्टी पर आग लगाने वाला चौका। उत्कृष्ट टाइमिंग और उससे भी बढ़िया प्लेसमेंट। गैप ढूंढा था डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है और एक खिलाड़ी स्वीपर कवर की दिशा में है, दोनों के बीच में से गेंद को निकाल दिया अभी पाटिल ने, और ये उनकी ताकत है। ऑफ साइड में बहुत ही दिलकश ड्राइव्स और कट खेलते हैं अभी पाटिल, मैन फ्रॉम वडगर। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंच पाए रवि और कवि वहां पहुंचते हैं अवि। 75 पर 4। इस बार पंच किया, हालांकि यह सुनिश्चित किया कि
कैच आउट नहीं होंगे, एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाती हुई गेंद 76 पर 4, 76 फॉर 4। आखिरी 2 गेंदे, लास्ट मैन आउट प्रशांत पाटिल, 5 गेंदों में 2 रन बनाकर कॉट बाय कृष्णा सातपुते, बोल्ड बाय सैफ। ये नंदन पाटिल जिनसे रनों की अपेक्षा होगी दूसरी पारी में, द किंग ऑफ रिंग। अब देखिए, दिस इज शॉट ऑफ द मॉर्निंग, कितना दूर, छक्का नहीं, अट्ठा नहीं, दस्सा, बहुत दूर मार दिया प्रतीक विशे ने। जी हाँ, इतने रन यदि मिल पाते तो वो मिल ही जाते, लेकिन मैक्सिमम तो 6 ही होता है। गजब का स्ट्रोक, ताकतवर स्ट्रोक था ये, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर तारामंडल में भेज दिया। हाई एंड हैंडसम, 6 रन, कड़क दिखा दिया उन्होंने अपना दर्जा। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जैसे ही आई स्ट्रॉन्ग जोन में दे दिया। 82 पर 4। प्रतीक विशे अपने चयन को सार्थक करते हुए पिछले मुकाबले में जल्दी आउट हुए थे, ये मुकाबले में जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर खेलता हुआ एक खुददार बल्लेबाज। इस बार ड्राइव किया है, कम से कम 2 की कोशिश रहेगी, 1 पूरा किया, 83। अब स्कोर होने जा रहा है 84, लेकिन 84 नहीं हो पाएगा। 83 पर पारी सिमटती हुई और मैच जीतने के लिए 84 रनों का लक्ष्य रहेगा। आइए रुक करते हैं अगले टॉस की तरफ और कमेंट्री में परिवर्तन होगा जब आपके साथ जुड़ जाएंगे कुणाल दाते और सिद्दीक बाबे। Well, all our viewers, well-wishers, all the people in the stadium, I would heartily want to welcome each and every one of you to this league, which is the biggest cricket league of भिवंडी। इतना मज़ा आ रहा है, बहुत 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 अच्छे मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर, एक के बाद लगातार एक। और अब हम जुड़ चुके हैं टॉस बॉक्स की ओर, where I am here with my co-commentator. Sir, please. धन्यवाद प्रेरणाजी गुप्ता आमच्याबरोबर आहेत. सर्वप्रथम मी या कॉईनच्या बद्दल तुम्हाला माहिती देतो. एका बाजूला BC4 कमिटी आहे आणि खऱ्या अर्थाने जर आपण पाहिलं तर ज्या कमिटीने शिस्त आणली आपल्या भिवंडी क्रिकेटमध्ये आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय BPL. तर मी आदरणीय मांगीलाल पालीवाल यांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. मॅगी 11 या टीमचे ते संघमालक आहेत आणि दोन्ही कॅप्टन आमच्याबरोबर इथे उपस्थित आहेत. RD440 आणि आमच्याबरोबर मॅच रेफरी अजीम हमदुल्ले देखील उपस्थित आहेत. BPL का कॉल दिया है. BC4 त्याच्यामुळे RD440 ने हा टॉस जिंकलेला आहे. मी दोन्ही RD440 ने हा कॉल केला होता, परंतु टॉस इथे जिंकलेला आहे मॅग 11. आतिशने इथे टॉस जिंकलेला आहे. तर आतिश, टॉस तुम्ही जिंकलाय. या अगोदरचे दोन्ही सामने मला वाटते तुम्ही जिंकलेले आहेत. काल एक रोमहर्षक सामन्यामध्ये तुम्ही विजय मिळवला, आज देखील सकाळच्या सत्रातला सामना तुम्ही जिंकला. टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करण्याचा. फिल्डिंगच का? या संघाच्या विरोधात काही वेगळी स्ट्रॅटेजी तुम्ही वापरलेली आहे का? फिल्डिंगमध्ये असे कुठले गोलंदाज आहेत जे पॉवर प्लेमध्ये तुमच्या टीमकडून खूप चांगली गोलंदाजी करतील? याच्या अगोदर 2 मॅच झाल्या, त्या दोन्ही आम्ही फिल्डिंगमुळे जिंकलो आणि आता पण फिल्डिंगच करू. आणि पॉवर प्लेमध्ये हिमांशू आहे, मयूर आहे, राजन पाटील आहे, त्यांचं चांगला कॉम्पिटिशन चालू आहे. ऑल इंडिया आयकॉन हा कन्सेप्ट तुम्हाला पाहायला मिळतोय भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये. मागच्या मॅचेसमध्ये तो खेळाडू तुमचा खेळताना दिसला नाही, परंतु आज किरण पवार आलाय, त्याच्यामुळे टीममध्ये एक बॅलन्स निर्माण झालाय का आणि खऱ्या अर्थाने एक कॉन्फिडन्स निर्माण झालाय का? हो, नक्कीच. किरण पवार आल्यामुळे बॅटिंग अजून स्ट्रॉंग झालेली आहे आमची. पुढील प्रश्न आमच्या को-अँकर प्रेरणा गुप्ता इथे करतील. कैसे हैं आप आज? ठीक है. एक नए जोश के साथ, नई स्पिरिट के साथ आप आए हैं इस बार ये मैच खेलने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? हाँ, कल के 2 मुकाबले हम लोग हार चुके हैं, तो आज जीतना ही है ये कैसे भी करके. अच्छा, आप अगर टॉस जीतते तो क्या चूज करते? फील्डिंग करने वाले थे. तो अब बैटिंग करनी पड़ेगी. कौन से आप बल्लेबाजों पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे और सबसे पहले भेजेंगे? राजेश सोरटे है जो कल अच्छे खेले और बिंदास से काफ़ी अपेक्षा रहेगी कि आज अच्छा खेले वो है, और बाकी सब बल्लेबाज अच्छे हैं, फॉर्म में आ जाए तो अच्छे खेलेंगे. बिल्कुल. ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ द टीम्स.
टॉस इथे झालेला आहे. आतिश भामरे आणि आतिश पाटील इथे उपस्थित होते. टॉस जिंकलेला आहे आतिश भामरे या कॅप्टन, आणि टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलाय असं त्यांनी सांगितलंय. जाऊया लगेचच कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद. थैंक यू कुणाल एंड थैंक यू प्रेरणा. दोस्तों लौट चलते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग की अद्भुत दुनिया में. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. लक्ष्य जो रखा है वो है 84 रनों का. यहाँ पर आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स के सामने चैलेंज स्पोर्ट्स ने, और कमेंट्री में मेरे साथ आईपीएल की मखमली आवाज़ बीपीएल सीज़न 2 में जुड़ने जा रहे हैं कुणाल दाते. वेलकम कुणाल. देखिए कुणाल, अब कृष्णा सातपुते द मिरेकल ऑफ इंडियन क्रिकेट की अग्नि परीक्षा रहेंगी, क्योंकि लक्ष्य बहुत भारी है. गेंदबाजी के लिए चैलेंज की तरफ से आराफ शेख जो उनके आइकॉन खिलाड़ी हैं. दोपहर के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में. अल्ताफ बाली सर BC4 कमेटी, बीपीएल के चेयरमैन संजय मात्री जी, साथ ही साथ पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से खेल की शुरुआत होती हुई. कुणाल, 2 मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरके फ्रीट एमजे स्पोर्ट यहाँ से लक्ष्य का पीछा करेंगी तेज रन से और रोकने की कोशिश करेंगी चॅलेंज. हो, नो डाऊट, कारण 14च्या सरासरीने ते धावा करायच्या आहेत. पॉवर प्ले खूप महत्त्वाचा आहे. पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये 2 पॉवर प्लेच्या दरम्यान जर 30 धावा केल्या टीम आरके फ्रीट आणि एमजे स्पोर्ट्सने तर पारडं त्यांचं जड होईल. परंतु चॅलेंज स्पोर्ट्स इथे चॅलेंज नक्की निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये ते मॅगीच्या विरुद्ध पराभूत झालेत. आराफ शेख राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. ओ हो ये उड़ाया 6 रन. कृष्णा सातपुते टूर्स एंड ट्रैवल्स सीधा स्टैंड में 6 रन. काय टायमिंग आहे कृष्णा सातपुतेचं. 228 क्रमांकाचा षटकार इथे येतोय. समोर टाकलेला बॉल लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर कृष्णा लक्ष्मण सातपुतेच्या बॅटमधून हा कृष्णा शॉट. कुणाल देखिए, ये वो खिलाड़ी है, इसके कंधे पे जितना बोझ डालो ना उतने मजबूत होते हैं. व्हाट अ शॉट. ओ बढ़िया वापसी, हाथों के पीछे से लेग कटर. हालांकि अपना फेवरेट शॉट खेलना चाहते थे सातपुते. ये तो रति महारथी की लड़ाई है, ये सब देखने मिलेगा. हो, हा संघर्ष मोठा आहे. या सर्व गोष्टी तुम्हाला पाहायलाच मिळायला हव्यात, कारण ही भिवंडी प्रीमियर लीग आहे. ऑल इंडिया आयकॉन हा कन्सेप्ट वेगळा आहे. प्रत्येक खेळाडू इथे मोठ्या संख्येने आलेले आहेत, उपस्थित होतात आणि चांगलं क्रिकेट दाखवतात. आराफ हेलीकॉप्टर ड्राइव, पीछे खिलाड़ी है, दूर से आ रहे, नहीं रोक पाए. 4 रन. क्या बल्लेबाजी और क्या जवाब ईंट का पत्थर से दे रहे हैं कृष्णा सातपुते. खोलवर टप्प्याचा बॉल, त्याच्या विरुद्ध हेलिकॉप्टर ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना गॅपमध्ये फटका. बॉटमहँडचा खूप चांगला वापर, ताकद, नजाकत, टायमिंगच्या जोरावर बॉलला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कृष्णा सातपुते या फटक्यांसाठी जाणला जातो. काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय हा चौकार. 10 पे पहुंचे कृष्णा, 10 पे पहुंची स्कोर आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स टीम. देखिए अटैक भी किस पे किया है, आइकॉन पे. आराफ शेख राइट आर्म ओवर द विकेट. कृष्णा को इज्जत बख्शी, पुश किया, 1 रन. ओवर थ्रो हुआ है, बैकअप लेट होता हुआ और 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने. स्कोर 12 पे पहुंचता हुआ आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स का. दोपहर के सत्र में ठंडक जरूर है, लेकिन गर्म मुकाबला आप देख रहे हैं. लक्ष्य मोठं आहे. 84 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा, अगदी असाच खेळ करणं गरजेचं आहे. 12 धावा स्कोरबोर्डवर आहेत आणि तेवढीच धावसंख्या उभारली आहे कृष्णा सातपुतेने. मॅचमध्ये मजा येईल. आराफ शेख पहिल्या षटक हाताळत असताना समोर कृष्णा आहे. आराफ शेख इस मर्तबा लीडिंग एज है, क्या आउट हो जाएंगे. यस, और जश्न देखिए
कृष्णा के आउट होने के बाद। मोठी विकेट, ड्रीम विकेट आराब शेखसाठी महत्वाची विकेट, सामन्याला कलाटणी देणारी विकेट ही ठरू शकते. कृष्णा सातपुतेने पहिल्या 4 बॉलवर 12 रन केले होते. हावी होत होता आराबच्या विरुद्ध, परंतु त्यानंतर आराबने स्लोअर वनचा वापर केला आणि त्याच्या जाळ्यामध्ये अडकलाय कृष्णा सातपुते. टॉपेज घेतल्यानंतर चांगलं क्षेत्ररक्षण, कृष्णा आउट. और कैच जब लिया गया तो चैलेंज के सभी खिलाड़ी झूम उठे। थॉमस डाइस पिछले मैच में 8 पे आउट हुए थे और कृष्णा इस मैच में कितने पे आउट हुए? 12 पे। लेकिन ऐसा नहीं है, आरके फ्रीड के पास बहुत गहराई तक बल्लेबाजी है, माना कि लक्ष्य बहुत बड़ा है। इस बीपीएल में क्या कमेंट्री कर रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, सदाबहार कमेंटेटर महाराष्ट्र के अजय करत, कमेंटेटर मजहर खान, प्रेरणा गुप्ता का अंदाज अपना है और आज आईपीएल की मखमली आवाज बीपीएल में कुणाल दाते। देखिए 1999 में हरीश पंड्या मेरे से ज्वाइंट हुए, इंक्लूडिंग मी। हर कमेंटेटर ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। स्विच हिट की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। पहला ओवर घटनापूर्ण ओवर, 12 रन, लेकिन सातपुते की विकेट। हो, पहिल्या ओव्हरमध्ये कृष्णा सातपुतेची विकेट मिळाली, परंतु सगळ्यांची प्रशंसा केल्यानंतर एक नाव नेहमीच मागे राहतं, ते म्हणजे सिद्दीक भाबे सर. गेले अनेक वर्ष सातत्याने भिवंडी क्रिकेटमध्ये हा आवाज दुमदुमलाय, हा आवाज आपला झालाय, हा प्रत्येक घरामध्ये आवाज पोहोचलाय आणि खऱ्या अर्थाने याचं श्रेय सिद्दीक भाई यांना देणं गरजेचंच आहे. खूप चांगलं समालोचन ते देखील करतात. भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये दुसऱ्या पर्वामध्ये 12-1 पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर टीम आरके फ्रीट आणि एमजे स्पोर्ट्स. यस, 5 ओवर बचे और यहाँ से जो जीतने के लिए रन चाहिए 72, जो आस्किंग रन रेट है वो अब 14 के ऊपर चला गया है। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। कृष्णा सातपुते के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं सचिन भोईर ने चैन का सांस लिया होगा। नए बैट्समैन आमिर आए हैं, जबकि देखिए इस ग्राउंड पे नंदन पाटिल के पास एक ऐसा कीर्तिमान है जो शायद कभी टूटे। 2 मरतबा 6 गेंदों में 6 चौके लगा चुके हैं इस ग्राउंड पे सिटी क्रिकेट में नंदन पाटिल। समय में कॉपरेट करें अंपायर। इस वक्त चैलेंज टीम को वार्न करते हुए धीरज दुमाले वाइड से शुरुआत करते हुए 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सिद्दीक भाई, पहिला बॉल टाकत असताना बॉलिंग ॲक्शन चांगली आहे, रिदम चांगली आहे, परंतु लाईन भरपूर खराब होती. या बॉलवर वाईड बॉल घोषित केला, कमबॅक करावं लागेल. रन झाले 13. एग्जैक्टली। इस मरतबा बहुत ही कड़क एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, देखते रहे खिलाड़ी। गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। आमिर आल्या आल्या असं वाटलं की डगआउट मधूनच सेट होऊन आलाय की काय. पहिला बॉल फेस करत असताना एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह इथे दाखवतोय. अतिशय चांगला फटका, बॉल सीमारेषा आपल्याकडे. भिवंडी प्रीमियर लीग चौकार. इस चौके की मदद से स्कोर आरके फ्रीट एमजे स्पोर्ट्स का 17 रन 1 विकेट। बने रहिए हमारे साथ ऑनलाइन। एक और खराब गेंद वाइड। हा दबाव आहे. या अगोदरच्या बॉलवरचा चौकार आला एक्स्ट्रा कव्हरला आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा लाईन खराब टाकली. लेग स्टंपच्या बाहेर वाईड बॉल, एक्स्ट्रा रन. टीमची धावसंख्या आहे 18. एक फलंदाज बाद. 84 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे आरके फ्रीट अँड एमजे स्पोर्ट्सला. कुणाल, आपको लगता नहीं उनका आर्म एक्शन छोटा है? यही कारण है कि आपने पिछली गेंद देखी जिस तरह आई थी बाहर चली। इस मरतबा स्लाइस करने की कोशिश, मोटा सिरा, बढ़िया फील्डिंग। 3 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए वहां पे खड़े खिलाड़ी आकिब खान।
हो, आर्म ॲक्शनवर तुम्ही चर्चा करत होतात, परंतु त्याच्याबरोबर दिशा आणि नियंत्रण पाहिजे. जर तुमच्याकडे नियंत्रण नसेल तर मात्र तुम्ही अशा पद्धतीने गोलंदाजी करता, लेग स्टंपच्या बाहेर भरकटता, एका वेळेस तुम्ही ऑफ स्टंपच्या बाहेर भरकटता. परंतु जर तुमच्याकडे लाईन आणि लेन दिशा योग्य असेल तर मात्र तुम्ही समोरच्या टीमला, बॅट्समनला रोखू शकता. हा प्रयत्न व्हायला हवा. धीरज धुमाळ एक चांगला बॉलर आहे, नो डाऊट, परंतु जर त्याने अशी गोलंदाजी केली तर कुठेतरी फलंदाज हावी होतील. यस, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले भी चल रहा है. अच्छी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, रन लेना चाहते थे, मना किया वहाँ पर नंदन पाटिल ने. देखिए, नंदन पाटिल को किंग ऑफ रिंग कहा जाता है और मैंडेटरी पावर प्ले के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं तालुका क्रिकेट में. लेकिन अभी भी नंदन पे बंधन लगा हुआ है. ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, बढ़िया कोशिश और कामयाब. रनिंग कैच और नंदन पाटिल आउट. आरफ शेखने हा झेल पकडलेला आहे. नंदनवर बंधन आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर ते अजून घट्ट करत गेलेला होता या ओव्हरमध्ये धीरज धुमाळ. आरफ शेखने पहा किती चांगला कॅच इथे पकडलेला आहे. फुलटॉस बॉल होता, लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह इथे दाखवला नंदन पाटीलने, ज्यांना रिंग ऑफ किंग म्हटलं जातं, परंतु इथे नाही. आरफने हा मोडीत काढला त्यांचा प्रयत्न. फलंदाज बाद. नंदन या मॅचमध्ये 0वर आउट. कुणाल, आप तो आ जाएं, लेकिन एक सवाल ज़रूर है, क्योंकि आप ओपन क्रिकेट बहुत करते हैं. ये जो आइकॉन है, ये इस वजह से 100% दे रहे हैं कि बहुत बड़ी स्पर्धा है, या वो अपना स्वाभाविक खेल खेल रहे हैं? नाही, अगदी बरोबर आहे तुमचं. एक मोठी स्पर्धा ज्यावेळेला तुम्ही घटक होता, हा दुसरं पर्व आहे. या अगोदर गोरसईच्या मैदानात आपण पाहिलं प्रत्येक आयकॉनने आपलं 100% एफर्ट, कमिटमेंट दिलं आणि खऱ्या अर्थाने मी याच्यासाठी म्हणणार नाही, शिस्त आहे भिवंडी क्रिकेटमध्ये, शिस्त आहे. BC4 कमिटी जी रुलिंग कमिटी आहे त्यांच्या माध्यमातून शिस्तीमध्ये क्रिकेट खेळवलं जातं. आणि जर एवढं मोठं आयोजन एखाद्या स्टेडियममध्ये तुम्हाला खेळण्याची संधी मिळत असेल तर मग आयकॉन खेळाडूंनी देखील वेळेवर येणं गरजेचं आहे, चांगलं क्रिकेट दाखवणं गरजेचं आहे आणि ते तसं करतायत. धीरज धुमाले हाजी समझ से डिस्टेंट की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं. नए बैट्समैन AB ऑफ भिवंडी गैसुद्दीन शेख. इस मरतबा बढ़िया शॉट, बिल्कुल गेंद के ऊपर आके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे 1 रन आमिर अंसारी के बल्ले से. 1 रन से स्कोर 20 पे पहुंचा है, 2 विकेटें. देखिए कुणाल, हर खिलाड़ी का एक महान रिकॉर्ड है यहाँ पे. गैसुद्दीन शेख बाली ट्रॉफी 2017, 226 रन, 14 विकेटें और 7 कैच, मैन ऑफ द सीरीज. धुमाले मुड़ते हुए, गैसू को हल्के हाथों से टर्न करते हुए डीप मिड विकेट पर 1 रन. पावर प्ले का कोटा इस वक्त खत्म हो चुका है और कितने रन, 21 रन आए. इसका मतलब 4 ओवर में 63, 4 ओवर में यहाँ से कितने रन, 63 रन. जो आस्किंग रन रेट है वो 16 को छू रहा है. हो, खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर रिक्वायर रन रेट जो आहे तो 4 ओव्हरमध्ये जवळपास 16च्या आसपास जाऊन पोहोचलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आक्रमणच करावं लागेल, त्याच्याशिवाय कुठला पर्याय राहिलेला नाही आता फलंदाजी करण्यासाठी. आणि मगाशी तुम्ही जो रेकॉर्ड सांगितला त्या पद्धतीने जर फलंदाजी केली तर रन गेटेबल आहे, चेसेबल आहे, तसा प्रयत्न करावा लागेल बॅट्समनला. यस, और चारा भी तो नहीं है. यहाँ पे 2 ही बातें रहती है, हारना है या मारना है. खेल की शुरुआत होती भी बहुत बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं सचिन भोयर. एराफ शेख को कंटिन्यू रखा है. रमीज रईस हमसे जुड़ते हुए आपका पुरजोश खैर मकदम है. एराफ शेख अच्छी गेंद, हल्के हाथों से ड्राइव करते हुए गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन. देखिए लगातार गेंदों में चेंजेस कर रहे हैं एराफ.
एक मोठा खेळाडू आहे. टेनिस बॉल क्रिकेट खेळतो, लेदर बॉल क्रिकेट खेळतो, बदलापूरला बिलॉंग करतो आराब शेख आणि खऱ्या अर्थाने पाहिलं तर एक चांगला ऑलराऊंडर आहे. एक मालिकेवरची बाईक देखील त्याने मागेच जिंकली. वडिलांबरोबरचा फोटो अगदी मनाला भावून गेला असा खेळाडू आराब शेख सध्या गोलंदाजी करतोय आणि एक आयकॉन खेळाडूच्या भूमिकेमध्ये तो आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी. एराफ शेख इस मर्तबा अटपटे अंदाज से खेला, हवा में गेंद है, पीछे फिलहाल खिलाड़ी जा रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाए. एक रन जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं खेल बैठे थे, लगभग बल्ला फेंक दिया था गेंद पर. गैसुद्दीन शेखची आता जबाबदारी वाढलेली आहे. या मॅचमध्ये आता आक्रमणच त्याला करावं लागेल सामना जर वाचवायचा असेल टीम आर के फ्री हिट आणि MJ स्पोर्ट्सला तर. Yes, he is the captain of RK Free Hit and MJ Sport. Araf Sheikh. गेसू को बन गए भी, भेज दिया गेंद को साजन के घर. 6 रन. फुलटॉस बॉल, प्रत्युत्तर चांगलं. स्लॉक स्वीप करत असताना मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आरबचा हा बॉल पाठवण्यामध्ये यश आलेला आहे. AB डिव्हिलियर्स ऑफ भिवंडी यावेळेला गैसुद्दीन शेखच्या बॅटमधून येतोय हा BPL षटकार. रिस्ट में कितनी ताकत है ये देखिए. झुक गए और गेंदबाज को झुका दिया. 6 रन. हमारे बीच में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के सपूत जय पाटिल साहब मौजूद हैं. आपसे निवेदन है, आपका हार्दिक स्वागत है. आपको VIP पे आना है. कमाल की गेंद, बिल्कुल. ये देखिए लेग कटर. व्हाट अ बॉलिंग. खरोखर खूप चांगला लेग कटर. या अगोदर षटकाराला फुलटॉस होता परंतु त्याच्यानंतर कमबॅक करणं गरजेचं होतं आणि लेग कटर अगदी बॅटच्या समोरून वळवला. ज्या पद्धतीने ट्रेन पटरी चेंज करतात अगदी तसा बॉल त्याने वळवलाय. सांप की तरह फुवारती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास. स्विंग एंड मिस. क्या बॉलिंग हो रही है. लगातार एक बड़ा शॉट आने के बाद 2 अच्छी गेंदें. खरोखर चांगलं कमबॅक. या अगोदर लेग कटर टाकला, त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न केला. हाय बॉल शरीरावर जाऊन आदळतोय. चांगली बॉलिंग या ओव्हरमध्ये आरब शेखची. सबसे बड़ी बात है कि लगातार गेंदों को आगे रख रहे हैं. एराफ शेख राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. गेसू को ऊपर लगी है, खिलाड़ी उसके नीचे. ओ प्रशांत परदेसी ने गेसू को भेज दिया परदेश. आउट हो गए गैसुद्दीन. ओ बन गए जॉन्टी रोड्स. यस, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ BPL. हो अतिशय चांगला झेल. तिथे असलेले क्षेत्ररक्षक प्रशांत परदेसी. जावं लागेल आता यावेळेला गैसुद्दीन शेखला. अप्रतिम झेल. कॅच ऑफ द मॅच म्हणायला हरकत नाहीये. शेवटपर्यंत नजर ठेवली, बॉडी बॅलन्स योग्य होता. शेवटच्या क्षणाला वाटलं बॉल मागे चाललाय, एक हातामध्ये हा झेल पकडला आणि इथे खऱ्या अर्थाने जर पाहिले तर BPL मधला हा सर्वोत्कृष्ट झेल देखील होऊ शकतो. सबसे बड़ी बात कि उन्होंने गेंद को जमीन पे टच होने नहीं दिया. ये सबसे बड़ी बात है. उनका कंट्रोल चला गया था लेकिन व्हाट अ कैच. प्रशांत परदेसी ने BPL का ये सबसे अच्छा कैच पकड़ा है. आइए देखते हैं फिर से. व्हाट अ टेलीकास्ट. टेलीकास्ट क्या है प्रिंस मूवीज का. हो रिव्हर्स फॉरवर्ड प्रत्येक अँगलने वेगवेगळ्या अँगलने दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून. स्लो मोशन व्ह्यू पहा. काही वेळेला रिव्हर्स केला जातो हा अँगल, त्यानंतर फॉरवर्ड केला जातो. कशा पद्धतीने शेवटपर्यंत नजर ठेवून जजमेंट किती महत्त्वाचं होतं हा झेल पकडत असताना प्रशांत. त्याचा हा शांत नाही आहे. प्रशांतने आता मात्र या मॅचमध्ये कहर केलाय. महत्त्वाची विकेट मिळाली कारण फलंदाज गैसुद्दीन आउट झालाय. कॅप्टन आउट होतोय टीम RK फ्री हिट आणि MJ स्पोर्ट्सचा. ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पे चलता हुआ और 3 ओवर की समाप्ति पे 29 रन हो चुके हैं. क्या कैच पकड़ा है. कैच ऑफ BPL सीजन 2. और बचे हुए 3 ओवर में यहाँ से 55 रन चाहिए. BPL और IPL का अब
चोली दामन का साथ आवाज का होता हुआ और माइक्रोफोन पर वेलवेट वॉइस कुणाल दाते सर. 18 चेंडू आणि 55 धावांची आवश्यकता आहे. आता इथून पुढे 29 धावा झाल्या. 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 18 बॉल आणि आता 55 रनची आवश्यकता. 55 रिक्वायर्ड फ्रॉम 18. 18 गेंदे 55 रन हे समीकरण या मॅचमध्ये. ओव्हर नंबर 4 मध्ये आता गोलंदाजीसाठी तयार होईल गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर, परंतु सूरज हा बॅट्समन आलाय. नवीन बॅटर मैदानामध्ये प्रशांतचा हा झेल कितीही वेळा पहा हा आनंद देऊन जाईल. अनुभव आहे, चांगला झेल त्याने पकडला. बॉलिंगसाठी आकिब खान फार एंडकडून. परशुराम टावरे स्टेडियममध्ये आपण आहोत. भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व दुसरं. BC4 कमिटी आणि अल्ताफ बाली सर प्रस्तुत. या स्पर्धेचे चेअरमन आदरणीय संजयजी लक्ष्मण म्हात्रे. 70-70 स्पोर्ट्स, फुल टॉस बॉल, A1 चिकन सेंटर, अकलिक 8, O2 लाईव्ह, धनेश स्पोर्ट्स कुकसे, पांडुरंग धर्मा पाटील या सर्वांचे आम्ही मनपूर्वक आभार इथे व्यक्त करतो. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 29 धावा. ड्रिंक्स ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा मॅचला सुरुवात. आकिब खान बॉलिंगसाठी आणि त्याच्यासमोर फलंदाज सूरज पाटील. पुढे टाकलेला बॉल यावेळेला मिस टाइम होतोय. बॉल हवेत आहे. कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक जज करत असताना अप्रतिम झेल तिथे पकडलाय. फलंदाज बाद होईल. प्रशांतचा आणखीन एक झेल आणि आता आणखीन एक धक्का बसतोय टीम RK फ्रीट MJ स्पोर्ट्सला. यस, ये प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया ने कैच पकड़ा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि दोनों प्रशांत ने RK फ्रीट MJ स्पोर्ट को परेशान कर रखा है. बाहुबली बैट्समैन जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, सूरज पाटिल 0 पे आउट. गोल्डन डकचा शिकार इथे ठरत असताना दोन्ही प्रशांतकडे बॉल चाललाय. बॉलने देखील ठरवलं जाईन तर प्रशांतकडेच, आणि दोन्ही प्रशांतने आतापर्यंत चांगले झेल पकडलेले आहेत. या मॅचमध्ये आता अजूनही 55 रन करायचे आहेत, परंतु एक मोठा धक्का. सूरज पाटिल एक महत्त्वाचा हार्ड हिटर हा मात्र आउट होतोय. और इस वक्त हमारे मंच पे मांगीलाल पालीवाल साहब दिग्गज नेता हैं और मशहूर उद्योगपति हैं, और वाकई में उनकी टीम का जो परफॉर्मेंस है वो भी ऊपर है. आपका हार्दिक स्वागत है फिर से मांगीलाल पालीवाल साहब. शाहिद अंसारी, आमिर अन्सारी रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, विकेट कीपरचा वेध घेतोय. आकिब खान पहिल्याच बॉलवर त्याला विकेट मिळाली, त्यानंतरचा बॉल डॉट बॉल टाकलाय आणि त्याच्यामुळे आता दबाव पूर्णपणे असेल RK फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्सवर. चॅलेंज निर्माण केलंय. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये ते पराभूत झालेत. या मॅचमध्ये त्यांच्याकडून अपेक्षा होत्या आणि त्या अपेक्षांवर आतापर्यंत खरे उतरलेत. देखिए वैसे भी ग्रुप ऑफ डेथ कहाँ जाएगा. हो, तसेच सामने इथे पाहायला मिळतात. खोलवर टप्प्याचा बॉल, चायनीज कट मागे जातोय. बॉल फाईन लेगला थोडंसं फंबलिंग, तोपर्यंत एक धाव इथे पूर्ण करत असताना. कुणाल वाकई में चैलेंज को अभी तक कबूल नहीं किया है. कृष्णा सातपुते ने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन अंत उतना अच्छा नहीं हो रहा है. हो, बरोबर आहे. सुरुवात चांगली झाली, परंतु अंत आत्तापर्यंत चांगला झालेला नाहीये. बॅकफुटला जात असताना पंच केल्या. कव्हर्स बाउंड्री लाईनला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. प्रोटेक्शन असताना एकच धाव इथे मात्र मिळताना दिसेल. रन झालेले आहेत आतापर्यंत स्कोर बोर्डवर 32. यश पाटीलचं इथे खातं उघडलंय. देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसी फील्ड कप्तान ने लगाई है, बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं आकिब खान. पुढे टाकण्याचा प्रयत्न, यावेळेला फ्लाइट दिली होती, परंतु लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे. जज करत असताना चांगला झेल पकडला आणि फलंदाज बाद. अब हम कह सकते हैं कि आसमान में तो आज बादल नहीं, लेकिन बल्लेबाजी पे कठिनाई के बादल मंडलाते हुए RK फ्रीट MJ स्पोर्ट्स के. बढ़िया कैच बिलाल शेख का, हालांकि सूरज ज़रूर उनके आंखों के सामने था. जो अगला टॉस हुआ है, RD 440 ने टॉस जीत के, मैगी 11 ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला. मैगी जबरदस्त क्लीन बोल्ड. यावेळेला स्विच हिटचा प्रयत्न आणि आणखीन एक फलंदाज बाद होत असताना खराब कामगिरी टीम RK फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्सची या मॅचमध्ये.
आपको लगता नहीं कि कुणाल पूरी तरह सरेंडर हो गए हैं बल्लेबाज? नाही, ते प्रत्येकालाच वाटत असेल, कारण प्रत्येक फलंदाज येतोय ते हजेरी लावतोय, प्रत्येक फलंदाज आल्यानंतर काही चांगले फटके मारतोय, त्यानंतर तो आउट होतोय आणि त्याच्याचमुळे इथे पारडं पूर्णपणे जळ आहे चॅलेंज स्पोर्ट्सचं. मयूर विलास पाटील जे संघमालक आहेत चॅलेंज स्पोर्ट्सचे, ते खुश असतील ज्या पद्धतीने त्यांनी कमबॅक केलं या मॅचमध्ये पहिल्या सामन्याच्या पराभवानंतर. डूबती नैया को सहारा देने के लिए विक्की मात्रे, रन मशीन और भिवंडी और बाजिल शेख, हालांकि बल्लेबाज देखे तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन आस्किंग रन रेट काफ़ी बढ़ गया है. जीशान मिर्जा को भेजा है ऊपर बल्लेबाजी के लिए. बाएं हाथ के देखिए, जीशान भी पिक्चर में जब आए थे, जब इसी ग्राउंड पे कैफी आजमी ट्रॉफी 2017 खेली गई थी. जिशान मिर्झा नवीन बॅट्समन, परंतु सध्या दबाव आहे पूर्णपणे आर के फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्सवर, कारण 84 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता आणि आतापर्यंत धावा त्यांनी बनवल्यात फक्त 32. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 12 बॉलमध्ये 52 रनची आवश्यकता. 52 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 12. 12 गेंदे 52 रन. धीरज धुमाळे पॅव्हिलियन कडून यावेळेला लॉफ्ट केलाय, समोर क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑनला. बिलालच्या हातातून आता यावेळेला झेल निसटला. या अगोदर बिलालने एक चांगला झेल पकडला, परंतु यावेळेला अपयश येते. 1 रन मिळेल. देखिए बल्लेबाज सिर्फ उड़ा रहे हैं और उनकी विकेटें उड़ रही है, हालांकि यहाँ बच गए थे बैट्समैन. जिशान मिर्झा आता त्याच्यावर दारोमदार असेल वेगाने रन करण्याची. 1 रन इथे नक्की मिळेल. काऊ कॉर्नर मिड विकेटला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, फक्त सिंगल. इथे बॉलिंग खरोखर चांगली केली चॅलेंज स्पोर्ट्सने. प्रत्येक ओव्हरमध्ये दबाव इथे टाकत गेले, रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये विकेट्स मिळवत गेले आणि त्याच्यामुळे बॅकफुटला आहे संपूर्णपणे आर के फ्रीट अँड MJ स्पोर्ट्स. कुणाल देखिए, जो युवा खिलाड़ी उभर कर आए हैं उसका एक कारण है, इस गेंद के बाद मैं आपको बताता चलूंगा. यावेळेला फटका हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक आहे तैनात आणि इथे झेल ड्रॉप. बाजिल शेख, लोग हाथों की लकीरों में किस्मत को ढूंढते हैं, ये तो माथे पे लगा के आए हैं. 2 कैचेस छूटे हैं. मैं यही कह रहा था कि BC4 ने जो फॉर्मेट 2 सीजन से लाया था, उसमें जूनियर सीनियर का जो कॉम्बिनेशन था, उसकी वजह से युवा खिलाड़ी उभर के आए. हो, बाजिल शेखचे ते 6 बॉलमध्ये 6 षटकार कोण विसरेल. ऑन साइडला अलॉंग द कार्पेट मिड विकेटला बॉल ट्रॅव्हल होत असताना जिशान मिर्झाच्या बॅटमधून इथे फक्त 1च रन. याही ओव्हरमध्ये दबाव जो पहिल्यापासून बनवलाय तो दबाव सातत्याने बनवत गेलेले आहेत चॅलेंज स्पोर्ट्सचे गोलंदाज. त्याच्यामुळे या मॅचमध्ये आर के फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्स मी म्हणेन प्रभावाच्या दिशेने वाटचाल करतोय हा संघ. कृष्णा यस, हमारे बीच में जय पाटिल है, काफ़ी खुश है. कृष्णा सातपुते लवकर आउट झाला. सुरुवात चांगली केली होती कृष्णाने. पहिल्या 4 बॉलमध्ये 12 रन केले. बाजिलच्या बॅटमधून देखील मोठे हिट येताना दिसत नाहीयेत. आणखीन फक्त 1च रन. बहुत इंटरेस्टिंग है, सातपुते के आउट होने के बाद 1, 2, 3 बैट्समैन ऐसे हैं जो 7 रनों पे नहीं पहुंचे. हो, आणि कृष्णा सातपुतेच्या आउट झाल्यानंतर कुठल्याच बॅट्समनने डबल फिगरमध्ये रन देखील केलेले नाहीयेत. राऊंड विकेट. जिशान मिर्झासाठी हा बॉल वाईड यॉर्करचा प्रयत्न होता, जास्त बाहेर टाकलाय. पंचांचा इशारा येतोय, हा वाईड बॉल असेल. एक्स्ट्रा रन. धावा झाल्यात 38. 38 रन स्कोर बोर्डवर आहेत. लक्ष्यापासून पूर्णपणे दूर चाललाय संघ आर के फ्रीट अँड MJ स्पोर्ट्स. चॅलेंज स्पोर्ट्सने खूप चांगलं चॅलेंज निर्माण केले या मॅचमध्ये.
यावेळेला मोठा फटका स्ट्राइक करत असताना बॉलला पाठवलं मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी जिशान मिर्जाच्या बॅटमधून हा षटकार. कमाल का शॉट में फिनिशिंग थी. आइए देखते हैं. ऊंची बैकलिफ का इस्तेमाल किया था और गेंद को भेज दिया काउ कॉर्नर के ऊपर. बल्ले का स्विंग देखिए, बल्ला बिल्कुल ऊपर जाके कंधे के पीछे जाता हुआ और गेंद बाउंड्री के पीछे. ग्रेट शॉट. 44 धावा झालेल्या आहेत आणि 40 रनची आवश्यकता असेल. 6 गेंदे 40 रन, 6 चेंडू आणि 40 धावा. एक मोठा आणि उत्तुंग षटकार ठोकला. जिशानची ही शान आहे. समय में कॉपरेट करें प्लीज. देखिए कुणाल, दर्शक हो, कमेंटेटर हो, स्पॉन्सर हो, ऑर्गेनाइजर हो, एक तरफा मैच कोई भी नहीं चाहता है. हो, खूप चांगला उल्लेख तुम्ही केला. प्रत्येकाला वाटतं की ज्या वेळेला हे आयकॉन खेळाडू येतात आपल्या भिवंडीमध्ये क्रिकेट खेळण्यासाठी कुठेतरी त्यांच्याकडून रन आले पाहिजेत. तर ते जर गोलंदाज असतील तर त्यांच्याकडून विकेट्स आल्या पाहिजेत. कारण तुम्हाला पुरस्कर्त्यांनी त्याच्यासाठी इथे बोलवलेलं असतं. आपल्या भिवंडीचं क्रिकेट वेगळ्या लेवलचं क्रिकेट आहे, वेगळा दर्जा इथे निर्माण झाला. BC4 कमिटीने त्याच्यामध्ये शिस्त आणली आणि त्याचमुळे जर ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू इथे येत असतील तर त्यांना देखील हे सोपं नाही आहे. यस, पूरे तालुके का विजिट मैं आपको करा दूं तो जितने भी आइकॉन हैं उनको देखने के लिए ऑनलाइन दर्शक काफ़ी बेचैन हैं. आपने सही कहा कि आइकॉन अगर परफॉर्म करते हैं तो फिर जो दर्शक उनको देखना चाहते हैं ऑनलाइन पे वो खुश हो जाते हैं. प्रशांत परदेसी लास्ट ओव्हरमध्ये बॉलिंगसाठी पहिलाच बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप इथे डिलिव्हर्ड केला होता. अंपायर सिग्नल येतोय हा वाईड बॉल असेल. पहिल्याच बॉलवर 2 रन आलेले आहेत. एक वाईड, त्याच्यावर एक धावून काढलेली रन आणि त्यामुळे एक्स्ट्राने सुरुवात झाली या ओव्हरची. देखना है कि हार और जीत का फासला कितना कम करते हैं जिशान मिर्जा. 38 धावांची आवश्यकता. लेफ्ट मोर द विकेट यावेळेला लॉफ्ट केलाय समोर. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक नाहीये. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत 2 धावा मिळतील जिशान मिर्जाला. 2 धावाने टीमच्या टोटलमध्ये वाढ होते. धावा झाल्यात आता स्कोर बोर्डवर 48. 5 गेंदों में 36 रन चाहिए. एक तरफा मुकाबला चलता हुआ. वाइड यॉर्कर थी, डॉट गेंद. चांगला प्रयत्न वाईड यॉर्करचा. अगदी खोलवर टप्प्यावर हा बॉल टाकला. जिशान मिर्झाने या अगोदर बॉटरमॅनचा खूप चांगला वापर करून एक षटकार ठोकलाय आणि त्याच्या विरोधामध्ये वाईड यॉर्कर जर तुम्ही टाकण्याचा प्रयत्न कराल तर मात्र खऱ्या अर्थाने मी म्हणेन त्याला तुम्ही जखडून ठेवू शकता. हे दाखवलंय. प्रशांत परदेसीने यावेळेला स्लॉटमध्ये बॉल होता, पाठवला जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. वाइडिश लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे. BPL षटकार. क्या शॉट है, और शायद खुद से कह दिया होगा वहाँ पे परदेसी ने, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए. भेज दिया परदेस गेंद को. 6 रन. वाह, काय टायमिंग होतं, भव्य टायमिंग आणि तेवढीच चांगली कॉमेंट्री आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सिद्दीक बाबे यांच्या माध्यमातून. वाईड बॉल, आणखीन एक अवांतर रन. हा दबाव आहे, षटकाराचा दबाव. देखिए चैलेंज के कैप्टन चाहते हैं, हालांकि इससे पहले मैचेस में परदेसी ने गेंदबाजी नहीं की. एक ऑप्शन है उनके पास जिसको वो इस मैच में देखना चाहते हैं कि कितना है उनकी गेंदबाजी में दम. हालांकि परदेसी बहुत ऊंचे क्लास के गेंदबाज हैं. 55 रन झालेत. 55. 29 धावांची आवश्यकता. 3 बॉलचा खेळ शिल्लक. फुल टॉस आणि यावेळेला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बॉलला पाठवलंय सीमारेषा पलीकडे. अंपायर सिग्नल, षटकार. कुणाल, कल का भी एक मैच मुझे याद है कि RK फ्रीट वालों ने ये जिशान मिर्जा को कल भी इसी स्थिति में भेजा था जब बचा नहीं, कुछ नहीं था. कल भी अच्छी बल्लेबाजी की. चांगली बॅटिंग जिशान मिर्जाची. फुल टॉस आउटसाइड ऑफ स्टंप, एक पाय फिरवत बॉलला पाठवलं स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे. ड्राईव्ह करत असताना ऑफ ड्राईव्ह डीप मध्ये करा फिल्डिंग. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल आणि हा येतोय चौकार.
चांगला ऑफ ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना जिशान मिर्झा आणि या चौकाराच्या मदतीने रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 65 शेवटचा बॉल स्लोअर वन होता लवकर पिक केला आणि स्क्वेअर लेगला उडवलाय इट्स आउट ऑफ द पार्क BPL सिक्सर परंतु शेवट गोल केला सामना जिंकू शकलेले नाहीयेत RK फ्रीट अँड MJ स्पोर्ट्स चॅलेंज स्पोर्ट्सने हा सामना जिंकलेला आहे या षटकाराच्या मदतीने रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 71 आणि 12 रनने हा सामना इथे जिंकलेला आहे टीम RK फ्री हिट MJ स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध चॅलेंज स्पोर्ट्सने चॅलेंज स्पोर्ट्सचा एक भव्य विजय या मॅच मध्ये 30 कितने पे नॉट आउट है 4 सिक्सर 1 चौका 32 रन और क्या उन्हें मुबारकबाद भी दी जा रही है वेल प्लेड बट हार्ड लक जिशान 32 रन बनाए उन्होंने And ladies and gentlemen, one more time, a very warm welcome to BPL 2022. ये नहीं देखा तो क्या देखा? Well, now is the time of my favorite जो आज के हमारे मैन ऑफ द मैच होने वाले हैं उनका अनाउंसमेंट. So can I please have my co-host with me here? Meanwhile, I hope everybody has had their